matrix. Echelon form of a matrix means I have to convert the matrix with the help of row transformation, elementary row transformation. So in such a way that first number in the row, that is always known as leading entry, that should be 1 instead of first non-zero number. I should write over here. First non-zero entry, this should be 1 in every row. Fine, that is known as leading entry. And every leading entry 1 to the right of the one above it. ये जो sentence है second sentence, इसको जरा carefully समझिएगा. What it means that every leading entry 1 is to the right of the above one. It means what? Suppose first row somewhere here I am getting 1, here whichever entry doesn't matter. In the next row the entry is 1 is shifting towards right. Suppose like this, what is going on here? It is 1 in this way. So these 1, this leading entry, these are shifting towards right. Please note down in your copy. Okay, this is shifting towards right. This non-zero entry 1 is shifting towards right. Any non-zero row are always above rows with all zero. इसको मैं थोड़ा अच्छे से और explain करती हूँ आपको. एक तो ये third point और fourth, number of zeros in the subsequent row is greater than or equal to the number of zero in the previous row. Okay, so carefully हम समझे इसको. Basically, what is a row reduced echelon form? Row reduced echelon form. So row reduced echelon form of a matrix. First point, always try to convert the matrix. Try to convert the matrix into upper triangular one by one. First step is try to convert the matrix into upper triangular form. If it is possible. If it is not possible, always try to make all the entries one by one. अब second देखिए आप, second possibility क्या है? If we are not able to convert the matrix, wait. First let me finish. Then we will. Screen is not visible. Screen is not visible. सभी लोग विजिबल है मैम. बेटे एक बार अपना रिफ्रेश बटन प्रेस करिए, कुछ इशू हो सकता है इस पे. ये दोबारा से लॉगिन कर लो. हाँ, हम कहाँ थे? हाँ, देखिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, इधर वी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू दिस अपर ट्रायंगुलर. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, सी व्हाट वन बाय वन विल डू. वी विल पहले एक नया डेफिनेशन आपको बता दूं. लीडिंग एंट्री, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री in a particular row. This is known as leading entry. Fine. So first non-zero entry, it should be 1. We try to convert this as 1. Next step, every element in each row, rather subsequent row, नीचे वाले rows में, in subsequent rows, below 1, this should be 0. Suppose आपने first entry 1 बना दिया, तो इसके नीचे के सारे entries को आप 0 में convert करिएगा. ठीक है. Third step, number of zeros before leading entry, before first non-zero entry in any row, this will be either less than or equal to the number of zeros before. same thing, हाँ, ये before वाला portion मैं इसको copy paste कर रही हूँ in next row. तो इसको ध्यान से समझिए इस point को. This is a very important point. Number of zeros before first non-zero entry, this is smaller than or equal to number of zeros in before first non-zero entry in next row. तो ये sentence का मतलब क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे example से. Suppose I have one example like this. If I have a matrix like this, say 1 2 3 4 0 5 7 9 0 2 0 1. Suppose I have this. तो अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है इसमें. फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट अपर ट्रायंगुलर द गिवन मैट्रिक्स, यस और नो. तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज ये है 3/4. इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सो वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगुलर. बट वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस पोर्शन as upper triangular. We will try to convert this portion as upper triangular form. If it is possible to do so, you have to do that. If it is not possible at all, so what you have to do, you have to make first non-zero entry, leading entry as 1, then the subsequent rows below first row, इस 1 के नीचे के सारे एंट्रीज को 0 बनाना है. ये ऑलरेडी है. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है, ये सेकंड वाला, ये जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सेकंड रो में है, इसे 1 बनाना है. आप कोशिश करिए ये एंट्री को 0 बनाने का. ठीक है. तो इन दिस वे यू हैव टू प्रोसीड. 1 के नीचे 0 0 आ जाए, फिर नेक्स्ट रो में फिर से जहां भी 1 मिल रहा है, सपोज मुझे यहां मिल रहा है तो इसके नीचे के एंट्रीज को 0 बनाऊंगी. ये केस मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अगर, तो ये वाला जो भी केस था, इसके नीचे के एंट्रीज को 0 बन गई. सपोज यहाँ पे 1 नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है अगेन, इसके बाद मुझे 1 मिल रहा है, तो मैं इसके नीचे के एंट्रीज को 0 बनाना चाहूंगी. ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1 0 0 1, ये तो मैंने 0 0 बना लिया था, इसके नीचे के 0 बन गए. फर्दर फिर राइट साइड में, तो बेसिकली माय टारगेट इज टुवर्ड राइट साइड. जो 1 का प्लेस है ना, ये हर नेक्स्ट रो में राइट में शिफ्ट होता चला जाएगा. इट इज लुकिंग लाइक दिस.
Again, I'm repeating what I want. I try to convert the given matrix into upper triangular. If it is not visible for me, I will convert my each and every leading entry as 1, and below that one, I am making other entries as 0, 0, 0, and we are shifting this one towards right. ये करते जाना है और इनके नीचे 0 एंट्रीज मुझे लेते जाना है. तो ये मेरा टारगेट होता है रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में. मैं दोबारा से अपने डेफिनेशन में जा रही हूँ. रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म जो होता है, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लीडिंग एंट्री. दैट शुड बी 1. And every leading entry 1 is to the right of the above one. That means जो first entry मेरा 1 था, next row का leading entry वो right direction में shift होगा. ये बिल्कुल भी possible नहीं होगा कि 1 के नीचे दोबारा 1 आए. This is not acceptable. 1 के नीचे मुझे 0 ही चाहिए. ये याद रखना है आपको. और उसके बाद जो दूसरा लीडिंग एंट्री आएगा ना नेक्स्ट कंसीक्वेंट रोज में, वो राइट की डायरेक्शन में शिफ्ट होते चले जाएंगे. दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. तो एक ये पॉइंट ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट है एनी नॉन जीरो रोज आर ऑलवेज अबव रोज विद ऑल जीरो. दैट मींस सपोज आपके पास कुछ ऐसा आ गया, ये ऐसा मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 0 0 5. तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. इसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर दीजिए. किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड एंड थर्ड रो को इंटरचेंज कर दीजिए आप. तो जो नंबर ऑफ जीरोस है नीचे वाले रोज की तरफ जाने पे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जाएंगे. इफ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी आर गोइंग टू गेट मोर जीरोस. इट इज करेक्ट. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो ये प्लीज आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जीरोस किसी भी रो में ज्यादा कब होगा, जब वो नीचे के डायरेक्शन में है. अबव ऑल द रोज अबव रोज दिस शुड कंटेन लेस नंबर ऑफ जीरो देन द सब्सिक्वेंट रो. ये सेंटेंस समझ गया? हाँ बोलिए मैम. जो फर्स्ट रो है मान लीजिए उसमें सारे के सारे नॉन जीरोस हैं जैसे आपने अभी लिखा है, और जो नीचे की दोनों रोज हैं दोनों में सारे जीरोस हैं, तो क्या वो एशेलन फॉर्म में मानी जाएगी? फाइन फाइन. हाँ, अब मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी 2-4, तब समझ आएगा. ऐसे क्लियर नहीं होंगे. हम 2-3 एग्जांपल करते हैं. अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताया है, अब पहले एग्जांपल करते हैं. जैसे एक आपका कहना था कि मेरे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि यहाँ तो मेरे पास नॉन जीरो नंबर्स हैं, बट सेकंड रो में मेरे पास 0 0 0 आ गए हैं. कुछ ऐसा मैट्रिक्स मैंने ले लिया. तो ये वाला भी रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म है, बिकॉज 1 आ गया फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री और उसके नीचे की एंट्री 0 आ गया. ठीक है, दोनों ही 0 0 है. यस, इट इज रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म. करेक्ट. और कोई क्वेरी? एक एग्जांपल देखो. पहले कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, फिर आपकी क्वेरीज आएंगी, है ना. पहले आप समझ लें कि है क्या रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म, हम कैसे बनाते हैं. वी फर्स्ट गो थ्रू द एग्जांपल्स, तभी आपके क्वेश्चंस आएंगे. अभी आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है. पहले आप एक क्वेश्चन करेंगे. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस 2 3 4 0 5 7 0 8 3. सपोज आई हैव दिस मैट्रिक्स. फाइन. अब मुझे इसमें एशेलन फॉर्म बनाना है. तो रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई डू, आई कैन अप्लाई ओनली, प्लीज मेक श्योर यू कैन ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन, ई रो ऑपरेशन. यू कैन नॉट अप्लाई कॉलम ऑपरेशन. सो यू हैव टू जस्ट यूज ओनली रो ऑपरेशन. ओके, only row transformation you can apply. So now what is our first target? Our first target, yeah, fine, very much. R1 को हम हाफ से डिवाइड कर देंगे. R1 को 2 से डिवाइड कर दे. फाइन. तो अब हमारा ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा. A will be 1 3/2 4/2 is 2. 2 से पूरे को डिवाइड कर दिया हमने. 0 5 7 0 8 3. हाँ, अब सेकंड स्टेप क्या होगा इसमें? सेकंड स्टेप 1 के नीचे, हाँ सर, सारे नीचे 1 के नीचे 0 है. तो R2 को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट लीडिंग एंट्री हम 1 बना ले, है ना. तो लीडिंग एंट्री मींस फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री. तो इसको भी अब हम क्या कर देंगे, R2 becomes R2/5. ये कर दिया हमने. तो अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गया, आर्ट यहीं पे बना दूं क्या, 1 3/2 2 एज इट इज रखा हमने. इसको 5 से डिवाइड कर दिया. यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया. इसको स्लाइड शो में कर दूंगा, कुछ बच्चे मोबाइल से भी करते हैं ना. थर्ड एंट्री क्या बनेगा, कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, हो जाता है इसका. कौन से ब्लैक लेने. हाँ, अब थर्ड लास्ट एलिमेंट 7/5 है. 7/5. और यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड रो में. अब इसको 0 है ना. नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस वन एज 0. वी हैव दिस मैट्रिक्स फर्स्ट रो 1 3/2 0 1 7/5 0 8 3. ये क्लियर है बेटे, विजिबल है या दोबारा लिखूं ये मैट्रिक्स? हम क्लियर है. मैम क्लियर है. जो बच्चे मोबाइल से कर रहे हैं वो भी बता दें मुझे, क्लियर है? यस मैम. यस मैम. क्लियर है. ठीक है, चलिए. तो अब या वेरी मच फाइन. थर्ड रो में अब हम क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन लगाएं बताइए भाई. मैम R3 minus 8 R2. 8 times of R2. Yeah, fantastic reply. This will be like this. Now, first row remains as it is, and the second also remains as it is, 7/5, and third is becoming 0 0 3 minus 8 into 7/5. ये जो भी एंट्री आ रहा है डजंट मैटर, अभी मेरे को कैलकुलेशन नहीं करना है. अभी पहले मेरा टारगेट क्या था, ये यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो एंट्री आ रहा है. यस मैम. 15 minus 56/5. तो ये जो भी आपका एंट्री, दिस इज नॉन जीरो. चलिए लीव इट. हाँ, इधर देखिएगा प्लीज, कंसंट्रेट करेंगे आप सारे स्टूडेंट्स, प्लीज कंसंट्रेट हियर. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट रो. फॉर दिस एग्जांपल वी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट रो. आई हैव कन्वर्टेड दिस वन एज 1, देन लेटर ऑन आई ट्राई टू कन्वर्ट ऑल द नॉन जीरो एंट्री, सॉरी ऑल फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री. अब मैं फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वर्ड यूज नहीं करूंगी, आई विल यूज लीडिंग एंट्री. और लीडिंग एंट्री मींस व्हाट, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ईच रो. सो प्लीज टेक केयर. हाँ, लीडिंग एंट्री को मैंने 1 में कन्वर्ट करा और आई ट्राई टू डू दिस. और फाइनली इसमें भी एक और ऑपरेशन ले लो. सपोज इसको जो भी वैल्यू बताया था हमने, अल्फा ले लिया और अल्फा से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो फाइनली मेरा मैट्रिक्स जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 0 1 7/5 0 0 1. तो व्हाट आई गॉट, आई कन्वर्टेड दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर. फाइन. और जैसे ही आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, लीडिंग डायगोनल एंट्रीज जो है, लीडिंग एंट्री और लीडिंग डायगोनल दोनों में डिफरेंस क्या है. लीडिंग एंट्री मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ईच रो. लीडिंग डायगोनल मींस AII.
A11, A22, A33. If all these are non-zero, can you make it as zero without converting this zeros? This zero remains same. मेरा क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. If I have any upper triangular matrix, can I convert these entries as zero without affecting these zeros? Can I do it? देखो एक बार आपके पास पेन है, कॉपी पेन है आपके पास. You please first understand what my question is, and then you please try to do it. If you have any matrix like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0. My question is, आपको क्या करना है? Without changing this non-zero, can you make this entry zero? Can you make? नो मैम. बेटे एकदम अभी कुछ लोगों को चलो प्रैक्टिस कर लिया, कुछ ने नहीं किया है ना, तो प्लीज एक बार इसको मुझे आप प्रैक्टिस करने के बाद, आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि क्या ऐसा फिजिबल है फॉर एनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विदाउट चेंजिंग दिस 0 to, इनको 0 ही रखना है. विदाउट अफेक्टिंग मींस यू कैन नॉट मेक दिस एलिमेंट्स एज नॉन जीरो. ओके, इनको 0 रखते हुए क्या आप लीडिंग डायगोनल एंट्रीज को 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैन यू कन्वर्ट लीडिंग डायगोनल एंट्रीज एज 0? दिस इज माय क्वेश्चन. ओके, शायद हाँ. ठीक है, आप इसको करके मुझे बताइएगा, है ना, कि क्या ये पॉसिबल है कि आप इनको 0 बना सकते हैं. वैसे मेरे अकॉर्डिंग इट्स नॉट, जीरो होगा ही नहीं. है ना, इट्स नॉट पॉसिबल एज फॉर मी, बट किसी बच्चे ने बोला है तो ठीक है. चलो एक बार आप ट्राई करेंगे और मुझे इसको करके बताइएगा. इनको नहीं चेंज करना है बेटा आपको, और इनमें से किसी भी एक को 0 बना के दिखाना है आपको. आप रो भी ले सकते हो, कॉलम भी ले सकते हो. ये इस टॉपिक से हटके क्वेश्चन है आपके लिए. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, रो एशेलन फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन है. तो इसको आप नोट करके रखिए. कैन वी मेक एनी ऑफ द लीडिंग डायगोनल एंट्री एज 0 विदाउट मेकिंग दिस वन एज नॉन जीरो? दिस रिमेन्स 0, है ना. लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 रखना है, ये इम्पॉसिबल है मेरे अकॉर्डिंग, बट ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा. और ये मैंने आपको एक टारगेट दिया है इसको चेक करने का, वेरीफाई करने का. चलिए अभी हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करें. एशेलन फॉर्म. एशेलन फॉर्म में मैं दोबारा से बता रही हूँ क्या करना है. फर्स्ट यू ट्राई टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स एज अपर ट्रायंगुलर इफ इट इज पॉसिबल. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू convert the given matrix which contains maximum number of zero in the last row. Suppose I have this type of matrix. Maximum number of zeros आपके last row में आने चाहिए, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे zeros कम होते जाएंगे. First leading entry, first non-zero entry or leading entry it should be 1. It should be 1. और उसके बाद जो 1 है वो 0 0 है. Suppose मैंने कुछ ऐसा एक एग्जांपल लिया. फाइन. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ये बताइए आप कि क्या ये एशेलन फॉर्म है अभी? Yes or no? Can anyone tell me? Is it echelon form? Is this matrix is no? Yes ma'am. Yes ma'am. एक मिनट, रो किस बच्चे ने बोला है, नो किसने बोला है, क्या बताइए बेटा जिसने नो बोला है. कोई बात नहीं, हम देखो क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ, और ये मत सोचो कि सभी से हर चीज सही होगा. वी आर ह्यूमन बीइंग, हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, और इतना नहीं है, हम कंप्यूटर नहीं, हमारा माइंड की इमीडिएट सब कुछ इंस्टेंट वो ग्रास्प भी कर ले, ग्रास्पिंग पावर भी इतना हमारा हाई हो कि हमसे समझ लो इमीडिएट हम सही भी आंसर दें. कोई बात नहीं, इंटरेक्टिव होना चाहिए क्लास. आपको जो भी लग रहा है आप उसको बताइए मुझे. समबडी सेज कि नो, तो बताइए पहले नाम बताइए अपना. हु सेड नो? कोई बात नहीं, प्लीज शेयर. अरे भाई तुम लोग को इतना हेजिटेशन क्यों होता है? व्हाई डू यू डू सो मच हेजिटेटेड? व्हाई? अरे गलती होगी, सही होगा गलत होगा, कुछ भी हो सकता है. मुझे कभी आप क्वेश्चन दोगे कि मैडम इसका एंट्री यहीं पे किसी बच्चे ने बोला मुझे यहाँ पे 1000 दे दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, एंट्रीज इसमें कुछ और दे दो. कैन आई डू इट? आई एम हैविंग टोटल 25 years of teaching experience. Still I cannot do it. I take some time ना. तो प्लीज एक तो चीज आप लोग अपने माइंड से निकाल लीजिए कि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, या ये चीज बिल्कुल निकाल लीजिए. जो आता है उससे बोलना है, जहाँ नहीं आता उससे. या somebody says no. Please who said? Please unmute your mic. Please. It's okay. फिर वही बात, आप सब चुप बैठ जाएंगे. Please come forward. Who said no? Please come forward. बेटा क्लास इंटरैक्टिव होना चाहिए, और अगर कुछ ऐसा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा अगर आपसे क्वेश्चन ये है नो है तो क्यों है और कैसे है ना, तो उस चीज को डिस्कस करेंगे. दिस इज द वे ऑफ टीचिंग. ये कोई टीचिंग नहीं है कि मैं आपको बताते जाऊं और आप चुपचाप बस उसको देख रहे हैं स्लाइड शो को. इट्स नॉट लाइक दैट. हाँ, तो आपको उस चीज में इंटरैक्टिव होना है, आपको खुद भी सॉल्व करना है, और जहां जहां पे लग रहा है क्वेरी है, कोई केस नहीं क्लियर है, उसको क्लियर करना है. सो प्लीज एवरीवन बी इंटरैक्टिव. क्लास को इंटरैक्टिव रखिए, जहां पे भी कोई इशू है उसको बोलना है, चीजों को समझना है. आप कुछ नई चीज बताएंगे, मैं कुछ नया बताऊंगी. इट्स लाइक शेयरिंग. फाइन. सो एवरीवन, समबडी सेज नो, कोई बात नहीं, आप नहीं आ रहे सामने, बट प्लीज आप लोग आगे आके बोलना है आपको. तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये हमें एशेलन फॉर्म का मतलब समझ आना चाहिए. एशेलन फॉर्म में आपको क्या देखना है, क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं आपको मैंने. फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था कि एवरी लीडिंग एंट्री इट शुड बी 1. तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप करिए. रो 1, रो 2, रो 3. रो 1 के लिए लीडिंग एंट्री मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, यस. रो 2 के लिए लीडिंग एंट्री सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इट इज आल्सो 1, यस. थर्ड रो में कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं. R3 में कोई लीडिंग एंट्री, देयर इज नो लीडिंग एंट्री. फाइन. तो थर्ड रो में कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, तो ये भी सही है, ऑल जीरो है. सेकंड स्टेप में आप क्या चेक करेंगे, बिलो दिस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं दे शुड बी 0. फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया. सेकंड में तो हमारे पास कोई लीडिंग एंट्री नहीं था. सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में लीडिंग एंट्री आ रहा है, इसके नीचे के भी एलिमेंट 0 है, यस. सो बिलो एवरी लीडिंग एंट्री all numbers are 0. All numbers are 0. कोई भी जो लीडिंग एंट्री होता है उसके नीचे के सारे एंट्री 0 होने चाहिए. फिर दूसरे रो में आ जाओ, सेकंड रो में जो लीडिंग एंट्री है उसके नीचे के 0 होंगे, थर्ड रो में. तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया. थर्ड कंडीशन क्या चेक करना है आपको, नंबर ऑफ जीरोस. बहुत ध्यान से सुनेंगे.
फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और कंफ्यूजन होता है तो बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूजन होने का मतलब है कि तुमने कोशिश किया, तुमने पढ़ना चाहा, तभी तो हो रहा है। नहीं तो चुपचाप बैठे हैं क्लास में, क्यों नहीं है, जो चल रहा है ठीक है। मैडम ने दिन को रात बोला, हाँ जी। मैडम ने रात को दिन बोला, हाँ जी। टुडे इज मंडे, यस मैम। तो इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ क्लास। आई लाइक वेयर स्टूडेंट शेयर देयर थिंकिंग्स, देयर थॉट्स, देयर क्वेरीज, then I like the class. So please everyone should be interactive, huh? So number of zeros before, क्या चुपचाप बैठ करके क्या ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रहा है यहाँ पे, या कलर मूवी चल रहा है कहीं पे, मैडम लाल पीला भी ले लेती हैं। सो इट्स, यू आर नॉट वाचिंग अ मूवी, फाइन। सो यू हैव टू बी इंटरेक्टिव। नंबर ऑफ zeros before leading entry in each row, this will be less than or it may equal to number of zeros before leading entry in subsequent row, in the subsequent row or next row, subsequent or next row। आप चाहे तो यहाँ पे ith रो डाल दीजिए। ith रो में जो भी नंबर ऑफ जीरोस हैं वो या तो नंबर ऑफ जीरोस से i प्लस 1th रो में जितने भी जीरोस हैं उनसे या तो स्मॉलर होंगे या उनके इक्वल होंगे, ठीक है। तो लेट मी टेक सम मोर स्लाइड्स। रिड्यूस भी एशेलन फॉर्म थोड़ा ना। हाँ जी बेटे, रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म। देखो एशेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में क्या डिफरेंस है। सपोज मैंने कुछ ऐसा लिया, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं। सपोज आई हैव 3 2 5 0 1 0 0 0 1 एंड आई गो फॉर दिस एग्जांपल 1 3 7 0 1 0 0 0 1। ओके, तो इन दोनों को ध्यान से देखो आप। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दिस लीडिंग एंट्री इज 3 बट हियर इट इज 1। दिस इज आल्सो एशेलन फॉर्म because further we cannot make 0. Okay, this is echelon form and this is row reduced echelon form, or you can say reduced echelon form. So reduced या standard echelon form बोलते हैं हम इसको। तो ये जो standard form होता है ना, तो उसका एक वे होता है। वे जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वे ऑफ टॉकिंग हमारा डिफरेंट होगा। हम अपने पेरेंट्स के फ्रेंड से बात करें तो उनसे हमारा वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होगा। वहाँ पे हमें रिस्पेक्ट के साथ और थोड़ा सा हमारा डिसेंट वे होगा। अपने दोस्तों के साथ आप बिल्कुल ओपन है, फ्रैंक है ना। सो जस्ट लाइक ये एशेलन फॉर्म है, यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ हैं और यहाँ पे आप अपने एल्डर्स के साथ हैं, जहाँ पे थोड़ा सा आपको डिसेंट वे में प्रेजेंट होना है। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन करते हैं तो वो रिड्यूस्ड या स्टैंडर्ड एशेलन फॉर्म होता है। और यहाँ पे भी बाकी रूल्स आपके फॉलो हो रहे हैं, बट यहाँ पे जैसे ये रहेगा हमारा, है ना। ये वाला हमने क्या किया, इसको मैंने 1 पे रिड्यूस नहीं किया था, तो ये मेरा कैसा फॉर्म है, अभी एशेलन फॉर्म है। और अगर मैं इसको रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में लाना चाहूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो व्हाट आई नीड टू डू, R1 becomes R1 by 3 कर दीजिए आप। तो ये मैट्रिक्स अब आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 by 3 5 by 3 0 1 0 0 0 1। So this is the row reduced echelon form of this matrix A. Got it? मैम वो भी तो 1 by 3 होगा ना। मैम क्या हुआ, जो R1 में 1 by 3 भी तो होगा, खाली 1 थोड़ी रहेगा। भाई R1 by तो 3 लिखा है बेटा मैंने। ये तो मैम जो रो में जैसे 2 by 3 5 by 3 उससे पहले 1 by 3 भी तो होगा। आप नहीं समझे मेरी बात, रुक जाइए, इसको मैं सही फॉर्म में बताऊं। ये मैंने एक्चुअली में ये लिया है, R1 becomes 1 by 3 R1, ये मतलब है इसका। ये मैंने इसको ऐसे लिया है, इसका मतलब ये था, ठीक है। मेरे लिखने में कुछ कंफ्यूज हो गया, इसको मैं पूरा मैम इससे पहले कर। हाँ बोलो। मैम इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आपने कहा था कि आपने लीडिंग डायगोनल को 0 बनाना है, हाँ हम इसमें अगर हम R1 को R1 into R2 कर दे तो 0 हो जाएगा। क्या बोला आपने, R1 R1 into R2। R1 into R2 करने से क्या होगा, किसको क्या करना चाह रहे हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपका क्वेश्चन बेटे। व्हाट्स योर नेम? हम अंश, हम इससे पहले वाली स्लाइड। अंश, अंश आप क्या बोल रहे हो, प्लेस बताओ पहले, कौन सा प्लेस, इससे पहले वाले में बताओ, यस ये वाले में। हाँ बोलो, अब क्या बोलना चाह रहे हो? हम लीडिंग डायगोनल को 0 बनाने के लिए तो R1 goes to R1 into R2 कर दे तो रुको, अंश इतना जल्दी नहीं बोलो। हाँ अब बताओ, मैं लिख रही हूँ, बोलो। R1 becomes R1 into R2। R1 into R2। अंश मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बताए थे, एक मिनट प्लीज एवरीवन के पॉइंट। अंश, हाउ मेनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आई टोल्ड यू, हाउ मेनी रो ऑपरेशंस आई टोल्ड यू, फर्स्ट यू टेल मी। हम 3। हाँ इसमें आप अंश रुको, पहले फर्स्ट ऑपरेशन क्या था? मैम इंटरचेंज करने का रुको। हाँ एक ये था। सेकंड बोलो, जल्दी बोलो। एकदम डिवाइड के से मल्टीप्लाई। हाँ देखो तुम लोग ना, ये बियॉन्ड यहाँ से जंप मत कर जाया करो बेटा। अंश ऐसा कोई ना ऑपरेशन एक्सेप्टेबल नहीं होता बेटे। आप लोग मैडम को गलत प्रूफ करना है ना, इम्पॉसिबल में से आई एम हटाना है, मैडम को बताना है कि नहीं मैडम इम्पॉसिबल जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, आई एम पॉसिबल, है ना। अंश, यू शुड फर्स्ट गो थ्रू ऑल द रूल्स, बियॉन्ड रूल यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। Always do the things which comes under rules and regulation. These are the only operations possible. Fine. और इन operations के अलावा कोई भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। No other, none other than these operations you can't apply. मैंने एक फोटो भेजा, एक बार देखना व्हाट्सएप पे। अभी नहीं बेटा, प्लीज अभी नहीं। अभी तुम लोग ना मेरे टॉपिक को मत चेंज करो भाई। अभी मैं क्या बता रही थी उसको कंप्लीट कर दे दो मुझे, मैं बाद में देखूंगी वो, है ना। प्लीज एवरीवन, है ना। अभी पूरा वीकेंड पड़ा है भाई, मैडम को गलत प्रूफ करने के लिए पूरा वीकेंड पड़ा है। कम ऑन गाइस, डोंट वरी। पहले मेरे को ये कराने दो, मैं कुछ टॉपिक जाओ, कितना टाइम हो गया, मुझे एक और टॉपिक आज कराना है प्लीज। उस पर उसी बैठ के पढ़े कुछ बच्चे तो प्लीज वहां से बाहर आइए आप लोग। अभी से एशेलन फॉर्म पढ़िए आप लोग। हाँ हम कहाँ थे, हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, है ना। एशेलन फॉर्म में बता रही थी, दिस इज एशेलन फॉर्म। समबडी आस्क्ड मी एशेलन एंड रो रिड्यूस्ड एशेलन। रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है और ये कुछ ऐसा होता है, बोथ आर एशेलन फॉर्म। फाइन, एक एग्जांपल मुझे और बताने दो, देन मैं अपना एक फिर आपकी क्वेरीज लूंगी, और अगर हमारे पास टाइम रहा तो आज थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में स्टार्ट कराना चाहूंगी। हाँ अब आ जाते हैं, एक आध एग्जांपल और लेते हैं। चलिए हम आते हैं ये, सॉरी
सपोज ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया. If I have this matrix A B C 0 0 D 0 0 E, fine. Is it echelon form or no? मैम है. बहुत ध्यान से, बहुत इंस्टेंट नहीं करना. डोंट बी इन हरी. ये शॉर्टकट से बाहर निकलो. नो मैम. व्हाट्सएप पे, इंस्टा में सब जगह शॉर्टकट. इन सब से बाहर निकलो प्लीज. No, ma'am. नो मैम. बेटा एक No, चीज ma'am. देखिए, अब मैडम ने बोल दिया कि कैसे तो सब नो 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 कर रहे हैं. क्यों? रीजन दो मुझे. व्हाई दिस इज नॉट. सेकंड रो का जो डी है जीरो होना चाहिए. बोलो ना तो मैम भी कंफ्यूज, बच्चे भी कंफ्यूज. रुको मैं नाम लेती हूँ. रेज योर हैंड, लेट मी चेक. रेज योर हैंड. भव्या, टेल मी. मैम जो ई है मैम वो भी 0 होना चाहिए. भव्या ई को क्या कर रहे हो? 0 कर रहे हो आप. चलो क्या ऑपरेशन है भव्या, बताओ मुझे. मैम ए मैम 1 होना चाहिए. R3 को 0 बनाया. यस, वेरी गुड भव्या. आपने क्या किया? R3 ये E को गायब करना है. इस E को 0 हम बना सकते हैं बिकॉज़ ये भी 0 है और ये भी 0 है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू रोज वी कैन मेक E 0. क्या करेंगे हम? R3 becomes R3 माइनस E लाना है और D को एलिमिनेट करना है. तो E अपॉन D into R2. वेरी गुड. तो अगर आपने यहाँ पे D से डिवाइड करके E से मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट कर दिया तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा दैट विल similar to A B C 0 0 D and 0 0 0. फाइन, वेरी गुड भव्य. तो अभी हमने क्या किया? अभी ये करंटली ना एकदम से देख के बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम हाँ है, क्योंकि दोनों रोज में 0 0 है, यहाँ पे A है, ये तो एशेलन फॉर्म है जो मैम ने डेफिनेशन बताया. बट एक बार केयरफुली देखा करो, यहाँ पे 0 के साथ 0, यहाँ पे 0 के साथ 0 है और ये सेम प्लेसेस पे है, तो इसको हम इजीली 0 बना सकते हैं. इसको ABC से कंफ्यूज मत हो. इसको नंबर ले लेती हूँ मैं. चलो 0 0 4 0 0 9 कुछ ऐसा ले लिया मैंने ना, सिमिलर टू दिस एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने. अब मुझे इसको देख के, अब अगर मैं किसी बच्चे को पूछूं तो कोई भी गलती नहीं करेगा. यहाँ थोड़ा D और E आ गया था तो कंफ्यूज हो गए बच्चे. अब देखो यहाँ पे देखा आपने, अब इसको देख के एकदम सीधा सा लगेगा आपको. यस, 9 को हम क्या कर सकते हैं? 0 बना सकते हैं. इट्स सो सिंपल फॉर अस. पहले दोनों को 1 1 से डिवाइड कर, 4 से और 9 से डिवाइड कर दो और फिर इसको 0 बना दो, है ना. तो आप इसे कर सकते हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए. सो इट इज नॉट करंटली, इट इज नॉट प्रेजेंटली इन एशेलन फॉर्म, बट वी कैन रिड्यूस टू एशेलन फॉर्म. नाउ हियर इट इज एशेलन फॉर्म. एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा बताइए. मैम D को बनाना पड़ेगा. क्या करिए? R1 by A कर दे. A को भी तो हटाओगी, है ना. और D को जो आपने बोला कि सेकंड वाले रो में R2 अपॉन D करेंगे आप. तो फाइनली क्या आ जाएगा? 1. सॉरी मैं यहाँ नहीं लिखती, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे. I will write here. तो अब ये क्या बना देगा? 1 B by A C by A. यहाँ पे आ गया 0 0 D by D 1 हो गया 0 0 0. अब ये आपका स्टैंडर्ड एशेलन फॉर्म हो गया. और यहाँ पर भी क्या करेंगे आप? पहले इसको 0 बनाएंगे और फिर इसको 1 बनाएंगे. ये 1 ऑलरेडी है. तो फाइनली आपका ये जो मैट्रिक्स है ये बन जाएगा 1 2 3 0 0 1 0 0 1. सॉरी 0 0 0, यहाँ पे 0 बन गया था, है ना. तो ये आपका क्या है? एशेलन फॉर्म. हाँ पूछिए. मैम जैसे जो आपने रूल बताया था, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एनी रो इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन नेक्स्ट रो. लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. हां मैम तो इक्वल टू वाला केस किस में होगा? क्योंकि अभी तक हमने सारे लेस देन वाले चलिए एक वाला ले लेते हैं. वेरी मच करेक्ट. आई विल गो फॉर दैट केस जिसमें इक्वल आ रहे हैं. वी गो फॉर वन मोर एग्जांपल. इफ आई हैव द एग्जांपल लाइक दिस 2 3 4 0 0 0 सॉरी 0 0 0 1 0 3 0. सपोज ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया. नहीं, यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. कोई बात नहीं, यहाँ 0 नहीं. तो अब देखो ये वाला केस कैसे बताओ? नॉन जीरो एंट्री के पहले यहाँ पे कितने 0 है सेकंड रो में? इस पे देखिए यहाँ पे 2 0 है नॉन जीरो एंट्री के पहले. और R3 में भी हमारे को क्या मिल रहा है? देयर आर अगेन 2 0. फाइन. ये लीडिंग एंट्रीज हैं. रेड में जो मार्क कर रखा है मैंने वो लीडिंग एंट्रीज है. लीडिंग एंट्री इन फर्स्ट रो इज 2, लीडिंग एंट्री इन सेकंड रो इज 2, लीडिंग एंट्री इन थर्ड रो इज 1. ये एग्जांपल समझ आया? इसको ध्यान से देखो. इसको थोड़ा सा चेंज कर दो. इसमें थोड़ा सा ना ऑपरेशंस को अप्लाई कर दो. इट विल बिकम 2 से डिवाइड कर दें फर्स्ट रो को, हम सेकंड रो को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए. थर्ड रो को एज इट इज रखेंगे आप. अब देखिए ये वाला कैसा फॉर्म है बताओ मुझे. इज इट क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. फाइन. और कोई और एग्जांपल दूं? एक एग्जांपल और दे दूं? मैम राइट शिफ्ट नहीं हो रहा. 1 हाँ मैम ये एशेलन फॉर्म मैं 1 के नीचे तो 0 होना चाहिए ना. तो मैम ये एशेलन फॉर्म तो है ही. हाँ. अब इसमें चलो इसको थोड़ा और चेंज कर दें. स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इसमें अगर मैं सबट्रैक्ट कर देती हूँ 1, और इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया है. एशेलन फॉर्म दिख तो रहा है बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. चलो इसमें ऑपरेशन लगाइए. इसको राइट में शिफ्ट करना है 1 को. क्या करें अब इसमें? ये वाला इसमें माइनस कर दो. क्या बनेगा? इसको अगर मैं इसमें माइनस कर दूं तो क्या बनाइए? 1 3 by 2 2 0 0 0 1 3 by 2. वी कैन अप्लाई फर्दर. दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड एशेलन फॉर्म. इसको इस पे सबट्रैक्ट कर दीजिए. 0 0 0 minus 3 by 2 और इसको मैंने 3 by 2 से डिवाइड कर दिया. वेट, इतना करने के बाद एक मिनट. हाँ, इसको मैंने क्या कर दिया? पहले माइनस 3 by 2 आया. मैं सेम उसी में कर रही हूँ मैं, और अलग से नहीं ले रही हूँ, है ना. और फाइनली ये मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा. इस पे माइनस 2 by 3 से मैंने डिवाइड कर दिया. तो इट इज बिकमिंग दिस. नाउ इज इट रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म? यस और नो? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. फाइन. यस मैम. बट अभी भी उसका क्वेरी रह गया. क्या नाम था बेटा आपने जिसने पूछा था कि इक्वल नंबर ऑफ जीरोस वाला केस अभी भी नहीं बना, है ना. क्या बोला बेटा? इशिता का केस अभी भी रह गया. हम इशिता जो एग्जांपल चाह रही है हमने वो नहीं दिया. एक कोई बताइए भाई, आप लोग शेयर करिए एक ऐसा हो नहीं सकता.
नहीं नहीं है बेटा, क्यों नहीं है तुम देखो तो करके। इशिता ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो रोज में सेम नंबर ऑफ जीरोस हो। मैम अगर इक्वल हो गया तो फिर जो लीडिंग जो एलिमेंट है उसके नीचे जीरो नहीं होगा ऑब्वियसली। नहीं बेटा, अब ये एग्जांपल देखो, ये वाला, अब इशिता सेटिस्फाइड होगी। ये वाला देखो, इसको थोड़ा सा चेंज करो, रो रिड्यूस रैशनल फॉर्म बनाओ, 3 से डिवाइड कर दो। अब ये क्या बन गया, 1 4/3 5/3, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब तो सेम है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। देखो दोनों में सेम नंबर ऑफ जीरोस है ना, अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। सो दिस इज द राइट एग्जांपल फॉर इशिता। फाइन ओके है ना, क्योंकि दोनों रोज में कितने जीरो आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, और बाकी सारे भी जो कंडीशंस मैंने बताया था सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, है ना। फर्स्ट लीडिंग एंट्री मैंने सॉरी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री लीडिंग एंट्री 1 बना दिया, एंड ऑल अदर रोज आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ जीरोस। दिस इज पॉसिबल। फाइन इशिता, Yes, ma'am. anybody else, any other query? Then I go for some more examples. Ma'am, why हाँ? are we using equal to sign? Pardon? बोलो फिर से, तेज बोलो बेटा, माइक के पास लाके बोलो। हाँ वो बोलो। हाँ ये के साथ equal to sign क्यों यूज कर रहे हैं? ये वाला साइन, देखो क्या होता है ना, कोई मैट्रिक्स होता है ना, उसमें जैसे आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ये मैंने लिया 1 2 3 4, और इसमें मैं कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ ना, इधर रो और कॉलम। सपोज आपने इस पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, R1 बिकम्स R1/5। जैसे आपने ऑपरेशन इस पे अप्लाई करा, तो अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा ना, ये इससे टोटली डिफरेंट है, बना इसी से है, और इससे बना इसलिए हमने ये सिमिलर वाला सिंबल यूज किया। इक्वल ये हो ही नहीं सकता। क्या आप बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 इज इक्वल टू, कैन आई से दिस मैट्रिक्स 1/5 2/5? अगर मैंने इसको इक्वल बोल दिया तो क्या होगा, देखो फिर तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 1/5, 2 इज इक्वल टू 2/5। क्या ये पॉसिबल है बेटा? व्हाट्स योर नेम, नाम के साथ बोला करो बेटा, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, नाम नहीं देख पा रही हूँ। बोलो बेटा, किसने बोला था? चैतन्य मैम। हाँ चैतन्य। चैतन्य, देख समझ आई बात मैं क्या बोलना चाह रही हूँ चैतन्य? ये जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स से कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना, तो जो नया मैट्रिक्स होता है उसको हम प्रीवियस मैट्रिक्स के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, सिमिलर मैट्रिक्स। दीज आर सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर ट्रायंगल से कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलर मैट्रिक्स का मतलब होता है वन मैट्रिक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द अदर वन। यहाँ से ये बना सकते हो और इससे ये बना सकते हो। इक्विवेलेंसी एक वर्ड हम यूज करते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिसेस जो वर्ड यूज करते हैं ना, A is equivalent to B, A is similar to B, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है ना, यू कैन ऑब्टेन B from A एंड यू कैन ऑब्टेन A from B। ठीक है, इस पर एक ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। सेम होने का सीधा सा मतलब है कि एवरी एलिमेंट एट द पोजीशन ऑफ Aij ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सेम एलिमेंट इन द सेम पोजीशन। ये होता है। तो यहाँ तो 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, और यहाँ पे 1/5 है चैतन्य, तो ये इक्वल नहीं है ना। तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस या ये सिंबल यूज करते हैं। द सिंबल इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। हां One wanted to ask या that any चैतन्य, एक तुम्हारी आवाज कम आ रही है बेटा, पास लाके बोलो, माइक के पास आओ, या फिर थोड़ा सा ना वॉल्यूम इंक्रीज करो बेटा अपने सिस्टम का। हाँ चैतन्य बोलो। यस प्लीज कंटिन्यू, गो अहेड। that any नो आई एम नॉट हियर, आई कैन नॉट हियर यू बेटा, यू आर नॉट ऑडिबल। चैट बॉक्स में डालो तुम, कोई और पढ़ के बताएगा, चैट बॉक्स में डालो बेटा। आई एम नॉट एबल टू हियर। या किसी को सुनाई दे रहा है तो बताओ क्या बोल रहा है चैतन्य। मैम एक और डाउट है मुझे। हाँ बोलो। मैम ये 9th वाली स्लाइड में, रुको 9th वाली स्लाइड पे जाती हूँ मैं। ठीक है बोलो। मैम ये 2 सेकंड रो का 2 लीडिंग एलिमेंट कैसे हो गया? कहाँ पे 2 है लीडिंग एलिमेंट? ये वाला सेकंड रो पे। सेकंड रो, यस। हाँ तो सेकंड रो पे हम जब जाएंगे ना, व्हाट्स योर नेम? मैम अंश। अंश देखो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रो पे जाइए। फर्स्ट एंट्री 0 है, छोड़ दो। सेकंड एंट्री 0 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या बना? 2। लीडिंग एंट्री का डेफिनेशन क्या बताया डॉक्टर सिन्हा ने आपको? लीडिंग एंट्री का मतलब है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। आप अंश लीडिंग डायगोनल से कंफ्यूज मत होइए। हाँ लीडिंग डायगोनल में हम ai एंट्री ले रहे हैं, आप शायद उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। लीडिंग डायगोनल ith रो ith कॉलम a11 a22, आप शायद उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, उससे मत कोरिलेट करिए इसको। लीडिंग एंट्री मींस फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन अ रो। Please note down in your notebook. Leading entry is nothing but first non-zero entry in a particular row. Got it? मैम मैम एक और डाउट है। हाँ बोलिए। मैम ये बीच वाली मैट्रिक्स में मैम ये एशेलन फॉर्म में नहीं है ना, अभी बीच वाली अभी एशेलन फॉर्म में नहीं है। हाँ स्टैंडर्ड एशेलन फॉर्म में भी करना पड़ेगा हमें। सिंपल एशेलन फॉर्म में भी नहीं है ना, क्योंकि मैम हाँ सिंपल एशेलन भी नहीं है, बिकॉज़ हमारा ये राइट की टुवर्ड्स, ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, 1 के नीचे बना रही है ना, तो हमें इसको राइट में शिफ्ट करना है। यस वेरी गुड। एनी अदर क्वेरी प्लीज? मैम ये 3/4 मैट्रिक्स है मैम, तो इसमें सब मैट्रिक्स 3/3 करके एशेलन फॉर्म में हो सकती है? नहीं, वेरी गुड डाउट। आपका क्वेश्चन है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, क्या हम वो चेंज करेंगे? सब मैट्रिक्स में चेंज होता है बेटा, यहाँ नहीं होने वाला चेंज। एवरीवन प्लीज मेक श्योर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स रिमेन सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिमेन सेम। देखा, जब आप लोग बोलते हैं ना तो चीजें निकल के आती हैं, इसलिए मैं कहती हूँ बोलो, अपने पॉइंट्स को सामने रखो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स remain same. Order of matrix should be same while applying while applying the row operation or column operation. So please make sure about order. You cannot reduce the order भाई, अपने आप order मत change कर देना। हाँ गुड। और कोई बताओ, ये डाउट्स पूछते रहा करो भाई। मैम स्टैंडर्ड एशेलन फॉर्म एंड रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कैसे अलग अलग है? नहीं सेम है, मैंने तो ये बोला रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म सेम होता है, उसका सिनोनिम है वो। These are the synonyms of each other. Ro reduced एशेलन फॉर्म you can say standard एशेलन फॉर्म। Fine.
Okay, ma'am. Fine. चलिए मैं आगे नया टॉपिक बताऊं या फिर और कोई क्वेरी? अरे टाइम तो हो गया। हमें डाउट है हाँ बोलिए, डाउट्स पहले पूछते हैं, डाउट क्लियर करना जरूरी, बोलो। जो 9th स्लाइड है उसमें मैम जो आपने पहला स्टेप करा है उसको इंटरचेंज करके नहीं कर सकते हम R2 को और R3 को? R2 और R3 को कर लो, वो भी कर सकते हो। यस वेरी गुड, यू कैन डू दैट, वेरी मच फैंटास्टिक। मैंने बोला ना कि ऑपरेशन वेरी मच फाइन। व्हाट्स योर नेम? मयंक। मयंक के अकॉर्डिंग है कि पहले हम R2 R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं और फिर ये चीज करते हैं। ये भी सही है आपका, ये है कि इसको इंटरचेंज कर दे तो हमारा लेफ्ट इधर लेफ्ट साइड में ये वाला 1 शिफ्ट हो जाता है और ये इधर हो जाएगा। ये भी ठीक है, ठीक है मैं? यस फाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेरी, डाउट्स और हैं तो बताइए, नहीं तो मैं नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट कराऊंगी फिर। मैम 4th पॉइंट क्या था एशेलन फॉर्म में? 4th पॉइंट क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ जीरोस जो है ना सब्सिक्वेंट रो में, एनी नॉन जीरो ऑलवेज अबव, यही चीज है इसमें। बस थोड़ा सा इसमें इसको मेरे को और करके लिखना चाहिए। दिस इज और लाइक दिस, रादर 3 स्टेप्स आर सफिशिएंट। नेक्स्ट स्टेप में भी कुछ पॉइंट्स बताए थे क्या? नहीं 3 पॉइंट्स बताए ना मैंने। यस यस, इसको और कर लो, यही है, सेम है, यही कांसेप्ट है कि एनी नॉन जीरो रोज आर ऑलवेज अबव रोज विद ऑल जीरो। उसी को मैंने दूसरे फॉर्म में दूसरे वर्ड से बता दिया इसको, ठीक है? 4 पॉइंट, 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इनटू एशेलन फॉर्म। या हाँ, अब मैं आपको ना ये वाला टॉपिक जो मेरे को बताना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कल मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं आपको रैंक निकालने का एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगी। तो एशेलन फॉर्म अभी हमने किया है और इसी से अब आप रैंक कैसे निकालेंगे? रैंक निकालने के लिए रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ रैंक ऑफ, ये कलर क्यों चेंज हो जाता है? ऑटोमेटिक रेड कलर आ जाता है स्लाइड शो लेने पे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to number of non-zero rows, number of non-zero rows in reduced echelon form, reduced echelon form of a matrix. I'll give you one example. Suppose I have a matrix like this, 1 2 3 0 1 4 0 0 0. See, say this is one example and I'll go for another example. Now, first concentrate, everyone concentrate on example number 1. Is this in a row reduced echelon form? Standard Yes, echelon ma'am. form? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अच्छा एक नया definition और देख लीजिए, नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो means a row is having at least one non-zero entry, one non-zero entry. तो अब देखिए, how many non-zero rows are there? If you go this, yeah, fine. This is one of the non-zero row. This is another non-zero row. So if I give the name of this matrix as A, what will be your answer? Rank of this matrix will be 2. Okay. So what I said, rank of matrix is defined as number of non-zero rows in reduced echelon form. तो ये reduced echelon form में non-zero rows जितने भी होंगे वो उसका rank define करेगा. But make sure your matrix is standard echelon form. ये आपको ध्यान रखना है। और नॉन जीरो रो का डेफिनेशन होता है कि किसी भी रो में एटलीस्ट एक नॉन जीरो एंट्री आपको मिल रहा है, वो नॉन जीरो रो होता है। अब पहले ये वाला मैट्रिक्स देखें, दूसरे एग्जांपल पे आ जाइएगा। गो फॉर दिस एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। इज दिस रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म? Yes, ma'am. यस, आर यू Yes, श्योर? ma'am. Yes, ma'am. नो इट्स Yes, नॉट, ma'am. ये तो मेरे को नहीं लग रहा है। Ma'am, है ma'am. यस करेक्ट, वेरी गुड। दिस इज इन रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म, फाइन। इसको वैसे चाहे तो एक और एंट्री हम इसका जीरो बना सकते हैं, ये भी जीरो बन सकता है, बट वी डोंट नीड टू मेक इट एज जीरो, नो नीड टू मेक इट जीरो। सो हाउ मेनी नॉन जीरो रोज इन दिस केस? Ma'am, 3. जीरो रोज, सो व्हाट विल बी रैंक? 3, ma'am. से बी। अगर मैंने ये लिया, मैं क्यों मानूं आपकी बात कि इसका रैंक 3 होगा? नॉन जीरो है ना? फॉर्म है इसलिए। चलिए इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करते हैं। हम आपकी बात पे भी ट्रस्ट नहीं करते और डॉक्टर सिन्हा की बात पे भी ट्रस्ट नहीं करते। हम इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। क्या इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है? क्या है इसका डिटरमिनेंट बताइए? 0 हाँ, नो, नॉन जीरो पूरा एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है ये होता है, सॉरी अगर मैंने इसका डिटरमिनेंट लिया तो ये लीडिंग डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना, तो इसका डिटरमिनेंट तो 1 आ गया और डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, देयरफॉर रैंक इज 3। तो दोनों मेथड से आपने चेक कर लिया, एक आपने सब मैट्रिक्स वाले मेथड से भी किया, डिटरमिनेंट माइनर निकाल के, और अभी भी आपने इससे किया। वेल डन। एनी अदर क्वेरी प्लीज? आज मुझे स्टार्ट कराने दोगे नहीं तुम लोग नया टॉपिक? यस, और कोई क्वेरी है? क्या चीज बताऊं? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आई एम नॉट गेटिंग इट, एक बार फिर से रिपीट करिएगा। मैम रैंक पूछ रहा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक कल बताया था ना मैंने, कल की क्लास। क्या नाम है बेटा आपको? चैतन्य मैम, मुझे समझ नहीं आया। चैतन्य नहीं समझ आया? चलो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। बाकी बच्चे एक एग्जांपल करिए, इसी को आप देखिए, नॉर्मल फॉर्म पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही करूंगी। एवरीवन, रैंक जब हम निकालते हैं ना, तो रैंक के लिए मैंने आपको बोला था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर। फर्स्ट थिंग आपको देखना है कि एटलीस्ट 1 माइनर, जब रैंक हम निकालते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स का चैतन्य, तो क्या करते हैं हम? एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, ऑफ ऑर्डर आर, ये चीज होना चाहिए। एंड द सेकेंड पॉइंट, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन आर, of order higher than r vanishes,
ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस इतना सफिशिएंट है. दिस 2 lines are sufficient. At least one minor of order R is non-zero and every minor order higher than R vanishes. Suppose आपने एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया और इस 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स में आप ये कह रहे हैं कि एक आपको माइनर मिल रहा है माइनर 1 ऑफ दिस इज नॉन जीरो. ओके, नॉन जीरो ऑफ ऑर्डर 3. सपोज मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सॉरी ऑर्डर 2. M1 जो है एक नॉन जीरो माइनर है ऑर्डर 2 का, और जितने भी ऑर्डर 3 के माइनर्स हैं, ऑर्डर 3 के ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 बिकम 0. 4/4 का तो पॉसिबल ही नहीं है. हाईएस्ट ऑर्डर से हम स्टार्ट करते हैं. 4/4 का पॉसिबल इसमें नहीं है. तो 3/3 के जितने भी माइनर्स हैं उन सबके डिटर्मिनेंट को चेक करना है आपको. वो डिटर्मिनेंट सारे वैनिश हो गए, तो 2/2 का एक ले लिया आपने, तो इस केस में इसका रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ ए विल बी 2. सो एटलीस्ट वन माइनर, एक माइनर भी ऐसा आपने चेक करके बता दिया जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है. डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर ऑफ ऑर्डर 2/2 इज 0 एंड एवरी नॉन जीरो and every minor of order higher than 2. नॉन जीरो माइनर आपने किस ऑर्डर का पिक किया अभी? ऑर्डर 2 का. और जितने भी 2 से हायर ऑर्डर, 2 से हायर नंबर क्या होगा? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, 3 है, तो 3/3 के सारे वैनिश हो रहे हैं इसमें. ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 बिकमिंग 0. 4/4 इज नॉट पॉसिबल. तो इस केस में रैंक क्या बनेगा? इस केस में आपका रैंक होगा 2. कैसे समझ आया रैंक? और मैम अगर यस मैम, और अगर 3 में नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, हाँ, और अगर 3 का कोई भी एक तुमने नॉन जीरो बता दिया ना, उस केस में आपका रैंक क्या हो जाएगा? 3 होगा. फिर तो आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऊपर से स्टार्ट करना है, हाईएस्ट लेवल से. मेरा टारगेट है परसेंटेज कितने लाना है, AKTU में टॉप करना है. मुझे अपने पेरेंट्स को अपना फी पे ऑफ करके दिखाना है. ठीक है, मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को टाइम मिला है, इसको अपॉर्चुनिटी लीजिए कोरोना को कि यस मेरा टाइम आने जाने में वेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं ये टाइम अपना पूरा पढ़ाई में लगाऊंगा और अपने कैरियर में लगाऊंगा. तो आपका टारगेट है अभी कि बीटेक फर्स्ट ईयर में मेरे 100% मार्क्स आने चाहिए. तो 100 से सोचना है, ये नहीं सोचना है कि मुझे पासिंग मार्क्स लाने हैं, 40% लाना है, वो नहीं सोचना है. मुझे लाना है 100. अब मैं 100 नहीं ला पाया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे सोचूं 90, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे सोचूं 80. तो ऐसे हम हाईएस्ट से अपना टारगेट एकदम ऊपर रखना है ना, कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए. अब हैप्पीनेस का डेफिनेशन तो आप ह्यूमन वैल्यूज में पढ़ते हैं, ठीक है, उससे डिफरेंट हो गया टॉपिक मेरा, नॉट एन इशू. तो हाईएस्ट आपका अभी क्या है टारगेट? आपका टारगेट है कि मुझे इतने दिनों के अंदर ये चीज कंप्लीट करना है. तो हाईएस्ट टारगेट हम लेके चलते हैं. अचीव क्या करते हैं वो अलग बात है. तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे. प्रोसीजर हमारा होगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाईएस्ट वैल्यू. 4/4 तो इसमें पॉसिबल नहीं था, तो हमने स्टार्ट किया 3/3. 3 का सारा वैनिश हो गया, फिर हम आ गए 2 पे, 2 का सारा वैनिश हो गया, तो हम 1 पे आए. तो हमारा टारगेट ऑलवेज क्या होना चाहिए? हाईएस्ट. फाइन. तो रैंक में भी आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेरी प्लीज. एनीबॉडी एल्स? चैतन्य ठीक है? मैम माइनर इज नथिंग यस बट डिटरमिनेंट. मैम, माइनर हां, डिटर्मिनेंट राइट. डिटरमिनेंट है. और तुमने क्लास ठीक से नहीं किया था लग रहा है चैतन्य. एक बार बाकी बच्चों से भी पूछ लेना, हाँ, और एक बार पढ़ो बुक में, फिर क्लियर हो जाएगा. और जो क्वेरी होगी यू कैन आस्क मी. या